تو آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے آج کا حقیقی آزادی مارچ کاموکی کی بجائے فیروز والا کے علاقے رچنا ٹاؤن کے مقام پر ختم کر دیا۔ اگلا مرحلہ اتوار کو 11 بجے شروع ہوگا۔ عمران خان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ضرور باہر نکلیں۔ پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ دوسرے روز قافلہ فیروز والا میں رک گیا۔ مریدکے میں تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد پہنچی۔ مارچ کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر ٹریفک بلاک ہو گئی اور سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دو مختلف مقامات پر مرکزی سٹیج تیار کیے گئے ہیں۔ لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ مرید کے پہنچنے سے قبل ہی ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے فیروز والا میں لانگ مارچ کے استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کارکن پارٹی ترانوں پر رقص کرتے رہے۔ کنٹینر پہنچنے پر کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اپنے قائد کا استقبال کیا۔ مارچ کے شرکا سے خطاب میں عمران خان نے کہا، کسی کو بھی آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی، جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آزادی آپ کو دیتا نہیں، آزادی چھینی پڑتی ہے۔ چادرہ چوک پر خطاب میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 70 سال کی عمر میں قوم کو آزادی کی اہمیت کا بتانے نکلا ہوں۔ میڈیا کے پرسن دھمکیاں سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا، پہلے انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کے اس کے پر تشدد کیا۔ آج میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ کاموکی میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں نے عمران خان کے استقبال کی تیاریاں کی، مگر قافلہ فیروز والا میں رکنے کے بعد کارکن واپس گھروں کو چلے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا مقصد لانگ مارچ نہیں بلکہ لاشیں گرانا ہے۔ انہوں نے نیوز کانفرنس میں اسلحہ لانے کے حوالے سے علی امین گنڈاپور کی آڈیو بھی سنا دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اور اسد فاروق نامی شخص کے مابین ہونے والی مبینہ گفتگو کی ریکارڈنگ نیوز کانفرنس میں شیئر کر دی۔ مبینہ آڈیو میں علی امین گنڈاپور لانگ مارچ میں بندوں کی تعداد، اسلحہ اور لائسنسز سے متعلق پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ جی علی خان سر کیا پوزیشن ہے؟ سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدو کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس بھی بہت ہیں، بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ مبینہ آڈیو میں علی امین گنڈاپور اسد فاروق نامی شخص سے کیمپ لگانے کے لیے جگہ کا تعین کرتے اور انہیں بھرپور تیاری رکھنے کی تلقین بھی کرتے سنائی دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، ہم ساتھ قریب ترین کالونی ہے جہاں پہ کاروبار میں کود جائے۔ ادھر کا ساتھ کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بعد ٹولپازے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہے نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، میں مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ۔ ہاں میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں۔ میں کے پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے ان دونوں افراد کو اور جن بندوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو بندوں کو اریسٹ کریں اور اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں۔ کے پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گیدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کوشش ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں سے لوگوں کو الجھا دے۔ اس دوران اس کے اپنے بندے کام ڈال دیں اور وہ اپنے ہی بندوں کی لاشیں گرا کر کہیں کہ یہ ایجنسیز نے کیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ میرے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے، آڈیو میں بھی شکار کے لیے اسلحہ لائسنس کی بات کر رہا ہوں۔ نون لیگ حکومت نے لائسنس پیسے لے کر بیچے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی کہا، وزیر داخلہ کی طرف سے مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اسد فاروق میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا ذاتی بیانیہ ہے، پارٹی بیانیہ نہیں۔ وہ 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، کیا کہا آپ کو دکھائیں گے۔ 2013 کے بعد سے اب تک میں صرف ایک ہی شکار کر رہا ہوں اور وہ ہے وائٹ بور کا، جس کو میں منع کیا کہ اللہ بولے سے نہ تو بلا ہوا، اس کا شکار میں کرتا ہوں۔ میری جو انہوں نے مکسر میچ کر کے آڈیو چلائی ہے اس کے اندر بھی میں لائسنس کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ میں آئین کے مطابق پوچھ رہا ہوں کہ لائسنس کتنے ہیں صاحب۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں مجھے کوئی لائسنس نہیں ملا الحمدللہ۔
मुझे जो लाइसेंस मिले हुए हैं या मेरे दोस्तों को मिले हुए हैं या जो और लोगों को मिले हुए हैं वो इन्हीं की हुकूमतों में मिले हुए हैं और इन्होंने पैसों पे बेचे हुए हैं। हमारा एक परमानेंट एहतजाज है, हम उसके लिए आएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, वो हमें जो बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा ये जाती बयानिया है, पार्टी का नहीं है। अगर मेरे लोगों को जख्मी किया गया, मेरे लोगों पे हमला किया गया, मुझ पे हमला किया गया तो मैं रिएक्ट करूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अमीर मिलत सेनेटर बर्मिंघम में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के एहसार सवाब के लिए ख़त्म कुल शरीफ की रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने खत्म कुल की दुआ के दौरान शहीद के मिशन को जारी रखने का अज़्म भी किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। कीनिया में शहीद होने वाले पाकिस्तानी मारूफ इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी अरशद शरीफ के साले सवाब की गर्ज से खत्म कुल शरीफ की रूहानी महफिल अंजुमन खुद्दाम अल-सूफिया व अमीर मिल्लत ट्रस्ट बर्मिंघम में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की जेर निगरानी मुनक्किद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से सियासी, मजहबी, सहाफती, ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान कुरान खानी और ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने खिताब करते हुए शहीद मुहिब वतन, दिलेर, बेबाक, बाज़मीर और बाकिरदार सहाफ़ी को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके मिशन को जारी रखने का अज़्म करते हुए कहा कि ये तय है कि सच बोलें, हमेशा हक को सच का साथ दें, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब हो सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और दीगर शुरका ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफत में एक बड़ा नाम जिसने हमेशा हक का अलम बुलंद रखा, जिसको शहादत का रुतबा मिला, यही वजह है कि इमरान खान ने आज़ादी मार्च का आगाज करके तमाम आज़ादी पसंद अवाम को कौमी परचम के नीचे एक कर दिया। अरशद शरीफ जो एक निडर और बेबाक सहाफ़ी था और जिसने सहाफ़ती कदरों को परवान चढ़ाया और हमेशा हक को सच का उसने साथ दिया, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की थी। और मैं समझता हूँ कि कीनिया में जिस बेदर्दी के साथ उसे शहीद किया गया है, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उसके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बात याद रखें कि खान साहब की जंग जो है, ये खान साहब की जंग नहीं है, ये हक और सच की जंग है, ये हुसैनी फ़िक्र की जंग है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की बका की जंग है। इसलिए पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस तमाम मशाइख़-उज़्ज़ाम और उलमा किराम से ये अपील है कि वो खुद भी इस जंग में शरीक हों और अपने मुतल्लिकीन, मुतवस्सिरीन और मुरीदीन को भी ये पैगाम दें कि वो इस जंग में खान साहब के शाना बशाना खड़े हों। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मकसद जो है वो पूरा होना है। इसके खिलाफ जितनी भी कोशिशें कर ली जाए वो मकसद जो है पूरा होना है। वो किसी को भी अल्लाह मुंतखब करके उससे वो मकसद जो है वो हासिल करेगा। अरशद शरीफ की जो फौत की हुई है, the way he's passed away, it's very bad news for the public of Pakistan and hopefully we'll get justice for him with Imran Khan. प्रोग्राम के आखिर में शहीद अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी, एहसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सालमियत अता फरमाना, नेक साले ईमानदार गैरतमंद क़यादत नसीब फरमाना, कश्मीर के मुसलमानों पर अपना फजल करम फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। शुरका ने शहीद वतन के कातिलों तक पहुँचने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और बेबाक सहाफ़ी जनाब मोहम्मद अरशद शरीफ की रूह को इसका सवाब पहुँचाना और उनके दर्जात को बुलंदी फरमाना या अल्लाह पाक ताला इन्हीं मकाम अता फरमाना। मशरक़ी लंदन में सेफ स्किल्स क्रिकेट क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम नौजवानों को क्रिकेट कोचिंग के लिए सेल्स क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर साजिद महमूद ने क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बच्चों समेत क्रिकेट के कई क्लब खिलाड़ी और मुख्तलिफ लीग्स के ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद थे। तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने और क्रिकेट के मैदानों में उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए सेफ स्किल्स क्रिकेट क्लब ने सेफ स्किल्स क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। अकेडमी का इफ्तिताह इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद ने किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात भी अकेडमी में मौजूद थीं। हारून हफीज, उसामा भट्ट, शहबाज खान और मोहसिन ज़ेब की ज़ेर निगरानी होने वाली इफ्तिताही तकरीब में बच्चों समेत कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद ने उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से कई मुफीद टिप्स दी। A lot of the time they ask youngsters don't know that. But every time we train, if you train with something
इस मौका पर क्रिकेट एकेडमी के ऑर्गेनाइजर इंग्लैंड के साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद महमूद, एलियट डेविस क्रिकेट लीग के चेयरमैन सलीम यासीन, एकेडमी के इंचार्ज हारून हफीज का कहना था कि बरतानिया में एशियन कम्युनिटी में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हम चाहते हैं कि नौजवानों की सलाहियतों को एकेडमी में निखार कर उनको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने में मदद दी जाए। जो बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं खेल रहे हैं, इनको एक ये मौका दिया गया है, फराहम किया गया है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि ये जो कोचेज हैं इनको ट्रेन करें फ्री ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही अच्छा कदम सेफ स्किल ने उठाया है। इस वक्त आप देखेंगे कि 6 यहाँ पर बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एसेक्स ने ऑलरेडी 14 और 16 साल के बच्चे हैं जिनको एसेक्स ने साइन किया हुआ, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इनको बच्चों को मिल रहा है। ऐसी एकेडमी बहुत अच्छी है फॉर आवर कम्युनिटी। हमारे टैलेंट बहुत ज़्यादा है और दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज एकेडमीज, और इनको गाइडेंस चाहिए। हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत है, बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, स्पिन फास्ट जो कुछ भी है उनका बहुत टैलेंट है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको गाइडेंस दो, इनको बता दो कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए, क्या डाइट चाहिए, क्या फिटनेस चाहिए, कौन सा माहौल में जाएंगे। They need to get used to this, and it's our responsibility to show these guys. And what Haroon Bhai has done here is very, very good and very, very important for these youngsters to develop their game, and inshallah one day play on TV when we touch the TV and get professional contracts. हमारी कम्युनिटी में टैलेंट बहुत है, लेकिन स्टिल उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिसमें जिस तरह आज हमने साज महमूद इंटरनेशनल इंग्लैंड एक्स प्लेयर हैं वो आए हैं, इस तरह और भी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे जो इनकी हेल्प करेंगे, इनकी गेम को इम्प्रूव करने की और एक राइट डायरेक्शन पे ले जाएंगे। और तीसरा ये था कि फाइनेंशियली तौर पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों को कि वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल पे इस तरह के कोचेस को हायर करें और उनको वो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। तो हमने एक उसके लिए भी, तो ये ओवरऑल मिला के काफ़ी अच्छी एक प्लेटफॉर्म होगा। में यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट की एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इस एकेडमी से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो उनसे आए ना वो विंटर में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, तो इसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नौजवानों को मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, अपना टाइम स्पेंड करें और गेट टुगेदर विद इन क्रिकेट एंड इंडोर लीग, तो इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो नहीं सकती ऑल द यंगस्टर्स के लिए। अकेडमी में बच्चों और नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ सेशंस रखे गए हैं जिनमें माहिर कोचेस की जेर निगरानी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। अल्फैज़ ट्रस्ट यूके के ज़ेर तमाम चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया जिसमें यूके भर से जयत उलमा कराम ने शिरकत की है। पाकिस्तान के सबसे बड़े जामे निज़ामिया रिज़विया लाहौर की आला क़यादत ने सरपरस्ती करते हुए शिरकत की है। रिपोर्ट देखिए वकार बाबर की। अल्फैज़ ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम ब्रैडफोर्ड में चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान से साहबजादा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी, शेखुल हदीस अल्लामा डॉक्टर फजल हन्नान सईदी, अल्लामा हाफिज मोहम्मद जमशेद सईदी, रॉचडेल, ओल्डहम, रादरम, शेफील्ड, मैनचेस्टर, लंदन और दीगर शहरों से कसीर उलमाए कराम ने शिरकत की। अवाम ने चैरिटी डिनर में भरपूर हिस्सा लिया और दिल खोल कर अतियात दिए। आज हमने आगरा रेस्टोरेंट के अंदर अल्फैज़ ट्रस्ट के मातहत एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया जिसमें कम्युनिटी की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की है और इसके अंदर जोर इस बात पे दिया गया कि इस कम्युनिटी को और बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ तालीम बचा सकती है। हमें शऊर देना होगा, आगाही देना होगी और हमें अपने इदारे बचाने और नए बनाने होंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें बच सकें। कसीर तादाद के साथ उलमा का आना, ताजिर साहबान का आना और कामयाब प्रोग्राम रहा, तो अल्लाह ताला इस जो इदारा इन्होंने बनाया है ब्रैडफोर्ड में मोहतरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सज्जाद रिज़वी साहब, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह इसमें बरकतें होंगी। वो दिन दूर नहीं कि जो उनकी मंशा है अल्लाह उनकी मंशा को पूरा करेगा। जितने अहबाब ने भी इनके साथ डोनेशन की है अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। इखलास वाले जहाँ भी हैं वो कामयाब हैं। तो हमारे तो जो बुज़ुर्ग हैं वो तो जंगलों में भी बैठे, तो उन्होंने इखलास की बरकत से जो है ना जंगल में मंगल कर दी। तो बस हमें इखलास लाना पड़ेगा। तो अल्लाह हम सबको इखलास की दौलत से माला माल करे। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद हमारे साथ है। फ़िज़ाए बदर पैदा करके फरिश्ते तेरी नुसरत को, ठीक है जी। बस हमसे फ़िज़ाए बदर नहीं पैदा हो रहा। अल्लाह बदर वालों के पास तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं था, तलवारें भी थोड़ी थी, नेज़े भी थोड़े थे, घोड़े भी नहीं थे, लेकिन इखलास बड़ा था, यकीन बड़ा था।
हमारे पास तो बहुत कुछ है, पैसा बड़ा है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, बस इखलास की ज़रूरत है। मुसलमान जिस मुल्क में भी होते हैं और ख़ुसूसन जो यूके के मुसलमान हैं, ब्रेडफोर्ड के अंदर हम आज हाजिर हैं, तो यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मामले में बेदार हैं और होशियार हैं, और उसी की आज हमने एक झलक देखी है कि हमारे मौलाना सज्जाद रिजवी साहब और दीगर यहाँ के उलमाए किराम जो हैं वो इस मामले में हसास हैं, और उम्मीद मैं करता हूँ इंशाअल्लाह कि दिन ब दिन अगरचे हालात दिगर गू हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का वादा है कि इस्लाम भी सरफराज और सरबुलंद होगा और अल्लाह का नाम भी अर्जुमंद होगा। कम्युनिटी की जानिब से कामयाब प्रोग्राम पर अल्लामा मोहम्मद सज्जाद रिजवी और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान में जारी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बरतानिया में भी एक इज्तिमाई मुजाहिरा किया गया है। ये एहतजाजी मुजाहिरा ग्लासगो से मोटर रैली की शक्ल में शुरू होकर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लंदन में हसन नवाज की रिहाइशगाह एवन फील्ड पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के सदर वकास सागर और दीगर की जानिब से मशरक़ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जारी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बरतानिया में भी एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है। ये एहतजाजी मुजाहरा ग्लासगो से मोटर रैली की शक्ल में होकर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लंदन में हसन नवाज की रहायशगाह एवन फील्ड पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन के सदर वकास सागर और दीगर ओहदेदारान ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई बरतानिया भी इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए 30 अक्टूबर बरोज इतवार पूरे बरतानिया में लॉन्ग मार्च कर रही है। ये लॉन्ग मार्च ग्लासगो से मोटर रैली की शक्ल में होता हुआ बरतानिया के तमाम बड़े शहरों से गुजरता हुआ एवन फील्ड पर इख्तिताम पजीर होगा। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जाहिर सी बात है पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनके अपने जज्बात हैं, जो अपने तौर पर अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर होने वाले मार्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ इस वक्त लंदन में बैठी है, तो उनके जज्बात और ज्यादा उभर भर के आ रहे हैं सामने। तो उसका इजहार करने के लिए बहुत जरूरी है कि तहरीक पाकिस्तान में तो चल रही है और उसके साथ साथ ये एक इंडिया है हमारी तरफ से कि लंदन के अंदर भी, यूके के अंदर भी ये तहरीक के साथ हमारी तहरीक चलती रहेगी। आज़ादी मार्च का हिस्सा है और हमने स्कॉटलैंड से इंशाल्लाह हमारी जो पीटीआई है स्कॉटलैंड वो स्टार्ट करेंगे ऑल द वे 12 रीजन हैं आते हुए मैनचेस्टर, बर्मिंघम, वेल्स सारे लोग ज्वाइन करेंगे, ल्यूटन से, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से सारे लोग ज्वाइन करके हम लंदन में इंशाल्लाह 3 o'clock एवन फील्ड के सामने इकट्ठे होंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह अपना मार्च और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। एवन फील्ड पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बरतानिया भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान के साथ साथ मेंबरान भी इस एहतजाजी जुलूस में भरपूर शिरकत करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेरे तालीम गैर मुल्की तलबा से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा तरक्की और तोसी की राह पर गामजन है। मजीद क्या कहा, खुरम शहजाद रिपोर्ट करेंगे। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम गैर मुल्की तलबा की तकरीब से सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बचाव के लिए इजाफी इंसानी इमदाद करने पर अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोबारा तरक्की और तोसी की राह पर गामजन हैं। with the exchange of messages continues to permeate our relationship up to this day. In the 1950s, Pakistan was weak, fragile. इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस में 28 ममालिक के 190 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। सफीर पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब के बाद इब्तदाई रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों में मदद के लिए $57 मिलियन का अतिया देने को भी सराहा। सफीर पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के चैलेंजेस का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के साथ साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तेजी लाने और दोनों ममालिक के इक्तिसादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। But we recaptured the speciality of our relationship during the Afghan War in the 1980s, when the West and the free world decided to oppose and roll back Soviet Union's expansion towards the Gulf region through the invasion of Afghanistan.
सफीर पाकिस्तान मसूद खान ने बैनुल-अक़वामी तलबा और उनके ममालिक को पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने की दावत दी और कहा कि पाकिस्तान में टेक सेव नौजवान प्रोफेशनल डिजिटल इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। उन्होंने तलबा से बैनुल-अक़वामी अमन सलामती, बैनुल मज़ाहिब हमांगी और गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने की अपील की। सफीर पाकिस्तान ने हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से तलबा को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि वो आलमी सतह पर इंसाफ की भी उम्मीद रखते हैं। इस मौके पर मैक्सिको, भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अमेरिका और कई दीगर ममालिक के तलबा ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल और पाक भारत अमन के इम्कानात के हवाले से सफीर पाकिस्तान से सवालात भी पूछे। तकरीब में आमद पर सफीर पाकिस्तान का इस्तकबाल बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस की सदर मिशेल बार्न ने किया और मेजबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैनियल ब्रेमर ने की। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज, अमेरिका। पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का अगला एडिशन जनवरी 2023 में कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होने जा रहा है। इस हवाले से पाइप एक्स मिडिल ईस्ट में होने वाले तीसरे एडिशन की दुबई में सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आसिम इफ्तिखार, गेस्ट ऑफ ऑनर्स मारूफ अमाराती शख्सियात अहमद अलबुलूशी और बिजनेस टाइकॉन शकील अहमद मीर के साथ साथ मीडिया, रियल एस्टेट और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का दुबई और बहरीन में कामयाबी के बाद अगला एडिशन कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सजने को तैयार। दुबई में पाइप एक्स पावर्ड बाई और 101 दोहा के लिए तीसरे एडिशन की सॉफ्ट लॉन्चिंग। तकरीब में पाकिस्तान से 101 के ग्रुप डायरेक्टर आसिम इफ्तिखार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि बिजनेस टाइकॉन शकील अहमद मीर, अहमद अलबलोशी, मोहम्मद अकील वकील, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल के सदर मियां मुनीर हांस, समाजी शख्सियत फजल आमीन यूसुफजई, मकसूद अली, सलीम बट, कारी असलम सरकानी और हाजी अब्बास समेत दीगर शख्सियात ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर्स शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाइप एक्स के चेयरमैन इमरान खटक ने कहा कि दोहा के लिए 80% स्टाइल बुकिंग हो चुके हैं, जबकि मेहमान खुसूसी 101 के ग्रुप डायरेक्टर आसिम इफ्तिखार, शकील अहमद मीर और सलीम बट का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रियल एस्टेट सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला इंतखाब होता है। दोहा में भी और कतर में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हजरात हैं जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स और हमारे प्रोजेक्ट्स में बाई करते रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे पाइपेक्स के प्लेटफॉर्म से जो दोहा कतर में होने जा रहा है जनवरी के महीने में, तो हम वहाँ पर अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करेंगे और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास कि वो वहाँ पर आएँ, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और अपने लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट का जो मौका है उसको हासिल करें। स्पेशली थैंक्स अदा करूंगा 101 ग्रुप का, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में आ गए, हमारे साथ जेवी किया उन्होंने और इस पूरे इवेंट को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस वक्त जो बुकिंग है वो सारी लाइन में पड़ी है, मतलब हमारे पास इतनी इंक्वायरीज हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स की, जिसमें से 80% एग्जीबिशन हम सोल्ड कर चुके हैं और 20% स्पेस हमने रखी है कि जो जेन्युइन डेवलपर्स हैं जिनके पास NOCs हैं, जो NOC होल्डर्स हैं, सिर्फ उनको लेके जाएँ, जो नॉन NOC होल्डर्स हैं उनको हमने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन नहीं देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ 80% एग्जीबिटर ऑन बोर्ड हुए हैं, दे ऑल हैव NOCs, उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग, रेजिडेंशियल और बड़े अच्छे उनके जो है विलास वगैरह बन रहे हैं। No one was there before to highlight at the international stage, and now Pipex with 101 group, they're doing the third edition in Doha, Qatar, which is amazing because they've done in Dubai. So people now are realizing that in property, if you want to invest, if you want big returns, Pakistan is a huge market as well. The way Dubai become one of the top cities in the world because of the property industry, same way we can lift Pakistan with the property industry, and these guys are doing some amazing job. इनका जो एग्जीबिशन होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला हम भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि मैं इनवाइट करना चाहूँगा सियालकोट चैम्बर पाकिस्तान के अंदर, उनको भी मैं जाके दावत दूंगा कि वो इस इवेंट के अंदर लाजमी आए, और ताकि जितने भी बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं स्पेशली वो भी इस इवेंट में आए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। शुरका ने पाइप एक्स के चेयरमैन इमरान खटक की पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खिदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को फूलों के तहाइफ पेश किए गए, सॉफ्ट लॉन्चिंग, रिबन कटिंग की गई और पाकिस्तान इंटरनेशनल एक्सपो के तीसरे एडिशन की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।